یہ تو پیپلز پارٹی کے وقت میں بھی تھے اور اس سے پہلے بھی تھے، کیونکہ آئی آلویز فیل وین دیر از اے ول دیر از اے وے۔ دوسرا ایک بڑا کام کراچی کے لیے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ 16 گھنٹے یہاں پہ کراچی میں الیکٹریسٹی جاتی تھی۔ اگین میاں صاحب کراچی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ K4 کا منصوبہ آپ لے لیں، پانی کا بلینز دیے گئے جب میاں صاحب پرائم منسٹرز تھے۔ لیاری ایکسپریس آپ دیکھ لیں، کراچی حیدرآباد کا جو ایکسپینشن ہوئی موٹر وے کی، اس کو آپ دیکھ لیں تو بہت زیادہ گرین سروس جو ہے، بس سروس تھی، یہ میاں صاحب کا تحفہ ہے۔ اور پھر بزنس کمیونٹی از دا بیک بون آف پاکستان مسلم لیگ نون۔ ہمیشہ بزنس کمیونٹی یہ دیکھتی ہے کہ جب میاں صاحب کی حکومت آتی ہے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس میں بہت بہتری آتی ہے، ڈیولپمنٹ کے کام بہت شروع ہوتے ہیں، جی ڈی پی ہماری اوپر جاتی ہے۔ جس وقت میاں صاحب کو اقامے پہ بھیجا گیا اس وقت بھی ہم 6% سے زیادہ جی ڈی پی ہم کر رہے تھے، ڈالر کیا تھا، اور پھر ایک تجربہ ہوا اور ان کو اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی تک اکانومی۔ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ضرور ہوا ہے کہ ان بٹوین کچھ مہنگائی آئی ہے، اور کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ 16-17 مہینے جو شہباز صاحب کی حکومت تھی شاید اس کے اندر آئی ہے، مگر یہ زیادتی ہے کہ اگر ہم پچھلی حکومت نے جو کیا تھا اس کا ملبہ جو ہے یہ 16 مہینوں پہ ہم ڈال دیں۔ مگر جس دن میاں صاحب آئیں گے اور آ کے یہاں پہ مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ میں آ گیا ہوں، مجھ پہ یقین کرو کہ یہ میں چیزیں فکس کر دوں گا، جو مہنگائی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ بالکل یہی سچویشن جو تھی وہ ٹرکی میں بھی تھی۔ ٹرکی کے اندر آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی کہ 25% سے زیادہ بینک کے انٹرسٹ ریٹ ہیں، ان کی ڈی ویلیویشن ہم سے زیادہ ہوئی ہے، ان کی مہنگائی ہم سے زیادہ ہے، ان کی تمام چیزیں۔ مگر جب ایک نیشنل لیڈر جس میں کیرزما ہوتا ہے وہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ہم فکس کر دوں گا، ان چیزوں کو میں صحیح کر دوں گا، تو قوم اس کا یقین کرتی ہے۔ میاں صاحب وہی ایک چیز لے کے آ رہے ہیں، اور جب آ کے یہاں پہ وہ کہیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ اردگان کی طرح پاکستان کے لوگ بھی ان کی بات کا یقین کریں گے اور ان کو ووٹ دیں گے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں پہ یہ پڑھا تھا کہ جو احسانات ہوتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کا کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ہے۔ کسی نے بھی آپ کو 10 سال پہلے بھی کوئی احسان کیا ہو اور آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ اس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے لیے میاں صاحب کے کیے گئے جو احسانات ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 21 تاریخ کو بہت سارے لوگ یہاں سے قافلے کے صورت میں جائیں گے۔ اور میری جب لاسٹ ٹائم 3 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تو میں نے میاں صاحب سے یہ خواہش کی تھی، انہوں نے مجھے بتلایا تھا کہ میں بہت جلد آ رہا ہوں، تو میں نے کہا میاں صاحب میری خواہش ہے کہ میں آپ کے قافلے میں شروع ہوں۔ آج ہی مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ انشاءاللہ جو پلین آ رہا ہے چارٹرڈ پلین، اس میں نہ صرف کراچی کی نمائندگی کروں گا بلکہ بزنس کمیونٹی کی بھی نمائندگی کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں، پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کا آپ کو پتا ہے، کیا ان 2 سے 3 مہینوں میں میاں صاحب کی وہ سزائیں ختم ہو جائیں گی؟ آپ اگر اپیل بھی فائل کرتے ہیں، ابھی تو انہوں نے پروٹیکٹیو انٹرم جیل لینی ہے، تو اگر اپیل فائل کرتے ہیں ان سزاؤں کے خلاف تو آپ کے خیال میں یہ 2-2.5 مہینے میں آپ کو آپ کی سزائیں ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیے سب سے بڑا مین کیس جو ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہے۔ باقی کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کے متعلق ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیل پینڈنگ تھی اس میں میڈم مریم نواز کا اور میاں نواز شریف کی دونوں کی ایویڈنس ایک ہے، اور میرٹس پہ مریم نواز صاحبہ کا ایکویٹل ہو چکا ہے، خواجہ صابر کا ایکویٹل ہو چکا ہے۔ وہی ایویڈنس ہے
जिस एविडेंस के ग्राउंड पे मरीम नवाज़ को एक्विट किया गया, उसी एविडेंस पे आपने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस प्रोसीड करना है। कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने कहा कि ये लीगल टीम डिसाइड करेगी, कल इस्लामाबाद में जब हम आते हैं पाकिस्तान में मियां साहब, तो मैंने जिस तरह पहले कहा कि कानून और आइन के मुताबिक जो हमारा कानून और आइन कहता है उस तक हम वहाँ जाएंगे। अब महीने में केस डिसाइड होता है, दो महीने में इसके मतलब पेशन गोई करना तो मेरे बस की बात नहीं है। कोर्ट कितना टाइम लेता है वो तो डिपेंड करता है हालात पे। लेकिन मेरे नज़दीक उस केस के अंदर कोई मजबूत पॉइंट अब नहीं बचा, क्योंकि जब दो आदमियों के खिलाफ एक ही किस्म की एविडेंस थी तो मैडम को आपने एक्विट कर दिया, तो उसी एविडेंस के बिना पर आप किसी दूसरे को सज़ा नहीं दे सकते। तो ये मामला चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, ये मामला वहाँ जाएगा, हमारी लीगल टीम डिसाइड करेगी। हम अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें मेरिट्स पे अर्ली हियरिंग पे सुना जाए। आजकल माजी में आपने देखा होगा कि आपने एक एक दिन में सुना है लोगों को, तो अगर हमें एक हफ्ते में सुनकर हमारे केस को डिसाइड कर देंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो हम भी, आपको पता है कि माजी में यूसुफ रज़ा गिलानी हो या राजा परवेज़ अशरफ हो, उनको बयासी वज़ीर आज़म के जजेस गेट से अंदर नहीं जाने दिया गया। तो एक सबका वज़ीर आज़म को जो अक्यूज़ था उसको बाकायदा जजेस गेट से अंदर आप अंदर लेकर गए हैं, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट शायद में आपको वो फैसिलिटीज़ ना मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून और आइन जो कहता है, हमारा काम है रिक्वेस्ट करना, अर्ली हियरिंग ग्रांट करें और हमें सुने, जिस तरह दूसरे केसों को इम्पोर्टेंस दी है। और मुझे अपनी अदलियत से उम्मीद है कि अगर कोई ऐसा मामला वहाँ जाता है तो अर्ली हियरिंग पे हमारा केस जितना जल्द मुमकिन है फाइनल हो जाएगा। देखें, कानून और आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि जब कोई पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी एब्सकॉन्डर है, तो एब्सकॉन्डर अगर 2 या 3 साल के बाद आता है तो वो कोर्ट को सरेंडर करता है। उसमें 2 लीगल पॉइंट हैं। बाज़ औक़ात कोर्ट बेल को रिजेक्ट करता है, कैंसिल करता है, और बाज़ औक़ात श्योरिटी को फोरफिट करता है। यहाँ बेल कैंसिल नहीं हुई, यहाँ श्योरिटी फोरफिट हुई है और फ्रेश श्योरिटी देकर भी अपनी जान छुड़ाई जा सकती है। तो कानून जो है हर चीज़ का एक रास्ता देता है, और मेरे नज़दीक हमारे रास्ते में इतनी कोई मुश्किल सूरत हाल नहीं है जिससे हमें किसी किस्म की कोई फ़िक्र हो। हम के सामने जाएंगे अदालत, चूँकि पहला राइट हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी लीगल टीम आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा क्या स्टेप उठाती है, वो तमाम डिटेल आपके सामने आ जाएगी। हमारा वो मामला फाइनल नहीं हो जाता उस डिटेल में। देखिए, जहाँ तक नया जो कानून बना है, जो फुल कोर्ट आपने प्रोसीडिंग देखी होगी कोर्ट की, जो प्रोसीजरल एक्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट का, नए कानून में राइट ऑफ अपील दे दिया गया। रिव्यू पिटिशन में वकील बदली करने की इजाज़त दे दी गई है। सिर्फ ये कहा कि वो माजी से उसका इतलाक नहीं होगा। अब पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, चूँकि रिव्यू पिटिशन उनके पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है, उस कानून का इतलाक मियां नवाज शरीफ साहब के केस पे नहीं होगा। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर जहांगीर तरीन की पिटिशन पेंडिंग है, रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है, और कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पिटिशन में ये कह देता है कि लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन जो आइन के अंदर नहीं है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिया, और रिव्यू ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर देते हैं, तब उसका बेनिफिट भी उस जजमेंट के मुताबिक मियाँ साहब को जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर दी गई है कि डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ के लिए नहीं होगी, 5 साल के लिए होगी। अब वो 5 साल का पीरियड कब से स्टार्ट होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा आपको।
पास क्या है? एक नारा था कि वो जो अब शायद वो नारा रहेगा नहीं रहेगा, यूथ के लिए क्या है नवाज? देखें, जहाँ तक यूथ जो है ना, मेरे नज़दीक हमारा मुस्तकबिल हमारी यूथ के हाथों में है। पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के इस्तेकाम की जंग लड़ने की जिम्मेदारी अब हमसे ज़्यादा नौजवानों पे आयद होती है। मेरे नज़दीक नौजवानों के लिए जो तालीम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, अच्छे से अच्छे कॉलेज होने चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और ये जो चीज़ आप कहते हैं, इसके लिए आपने माजी में देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून ने माजी में भी नौजवानों के लिए काम किया। अभी 15 महीने का जो पीरियड गुजरा उसमें भी हमने काम किया, लेकिन हम झूठे वादे किसी से नहीं करते। नौजवान नस्ल, ये आप कौन हैं? हमारे बच्चे हैं ना। आपका फ्यूचर बेहतर होगा तो हमें खुशी होगी। हमने तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर लिया जितना करना था, हमने तो आपकी ज़िंदगी को देखना है। तो उसके लिए तालीम की सहूलतें बेहतर से बेहतर मिलनी चाहिए, नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए, नौजवानों के जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम ने दोबारा इस बात का मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला हमारे नौजवानों के जो मसले मसाइल हैं उनको बेहतर अंदाज में हम हल करने की कोशिश करेंगे। और हम जो सीनियर लोग हैं वो मियां साहब के सामने नौजवानों के मसाइल तो हमसे ज़्यादा उनके पास हैं। और जब से मियां साहब के आने की बात हुई है, आपके अलावा भी जो नून लीग रहनुमाओं ने बातें की है, वो एक बात पे उनका जोर जाके भाई हम वही करेंगे जो कानूनी टीम कहेगी, कानून के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो लगे से रहा है, तासुर से रहे कि आप अदालत को ये यकीन दिलाने में अभी तक नाकाम है कि हम ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेंगे। देखिए, आप ऐसा सुप्रीम कोर्ट बात देखें, तो क्या ऐसा चल रहा है जो अभी तक कामयाब नहीं हो? आपका सवाल बहुत अच्छा है। पहली बात यह है कि हम अदालतों को पहले कोई अंडरटेकिंग नहीं देते, राइट। हम वही, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि हम कानून और आइन के मुताबिक चलते हैं। जो मिसाल के तौर पर कल मियां साहब आते हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं, तो प्रोटेक्टिव बेल कराना हमारा लीगल राइट है या नहीं है? तो हम प्रोटेक्टिव बेल लेके जाके पेश हो सकते हैं। कल आने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या एक्शन लेता है उसके मुतालिक मैं पेशन गोई करने की पोजीशन में नहीं हूँ। ये जो अदलिया के मुतालिक जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि अंडरटेकिंग दे के लोग जाते हैं, अगर अंडरटेकिंग मियां नवाज शरीफ ने देनी होती तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस में से 2 जजेस ने पनामा में, आपको पता है कि अकामा के ग्राउंड पे उनको डिस्क्वालीफाई किया, पनामा में डिस्क्वालीफाई नहीं किया। मैं ये कहता हूँ, मैं तो आइन को मानने वाला आदमी हूँ, मेरा 1973 का आइन उठा के सामने ले आए। अगर कहीं लाइव डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी एक जुमला मेरे 73 के आइन के अंदर मौजूद है, और अगर 1973 के आइन के अंदर एक जुमला भी मौजूद नहीं है लाइव डिस्क्वालिफिकेशन का, तो फिर मैं कहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को जो आर्टिकल 10A की वायलेशन की गई है वहाँ, कि आपने फेयर ट्रायल का मौका उनको नहीं दिया, फिर वो कहता हूँ कि हम कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे, इससे हट नहीं चलेंगे, और कभी भी जो अंडरटेकिंग वाला मामला नहीं करेंगे। जो कानून और आइन कहेगा उसी के मुताबिक चलेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया, एक पूरा मेडिकल बोर्ड हुकूमत ने बैठाया है, ये सारा काम अदलिया पे मत डालें। उस मेडिकल बोर्ड के अंदर शौकत खानम का सबसे टॉप का जो मेडिकल डॉक्टर मौजूद था, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ पंजाब से PTI की। तो अब बोर्ड में अगर कोई गड़बड़ हुई है, बकुल आपकी बात को अगर मान लिया जाए, तो आपने उस डॉक्टर के खिलाफ और उस मिनिस्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? मिनिस्टर ने या डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम का जो मेडिकल रिपोर्ट दी है उसमें क्लियर कहा कि वो बीमार हैं, तो या आप उस मेडिकल रिपोर्ट को मान लें या आप ये कहें कि जो उस वक्त ये PTI की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने किसी के कहने पे उनको बाहर भेजा। तो मैं ये बात कहता हूँ कि जाते वक्त भी हम इजाज़त लेकर गए, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, अदलिया भी शामिल है, दोनों की इजाज़त से गए। वहाँ जाने के बाद बीमारी के ग्राउंड पर हम 2 साल के बाद आते हैं, 4 साल के बाद आते हैं, हमारा काम है अपने आप को कानून के हवाले करना,
कानून ने कानून और आइन के मुताबिक फैसला करना है, हम उसके मुताबिक चलेंगे। आप जो काफिले लेके जा रहे हैं उसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे, तो आपकी बिजनेस के रेट कितने परसेंट इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे? इसमें ये बता दें कितने लोग लेके जा रहे हैं? सर देखिए अभी तक कोई उनके खाने पीने का अच्छा ये जाएगा, ये तो कानून है। देखिए जी ज़्यादा हमारा जो है कि 2 काफ़िले जा रहे हैं। एक तो एक ट्रेन जा रही है जो सिंध से जा रही है जी, और एक ट्रेन के अंदर शायद हमने जो स्पेस रखी है वो तकरीबन 1,500 से 2,000 की 1,800 की है जी। एक ट्रेन जो है ये कराची से जा रही है। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं जी वो यहाँ से बाय रोड भी जा रहे हैं, मगर थोड़ा सा हम अवॉइड बाय रोड इसलिए कर रहे हैं कि पूरे हर जगह से जब लोग होंगे तो ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे लाहौर पहुँच के चौक हो जाएं और हम जहाँ पे हमें पहुँचना है। दूसरी बात ये है कि जी देखिए इसके अंदर ट्रेन का जो है वो डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी ने भी है, दूसरे लोग जो और भी मेंबर हैं, हमारी जो रिसेप्शन कमेटी मोहतरमा ने बनाई है उसके लोग हैं, तो हम सब कुछ करके कर रहे हैं। मगर खाने पीने का मेरे ख्याल से जो वर्कर्स वगैरह हैं, जो लोग जा रहे हैं, जो सपोर्टर्स जा रहे हैं, जो हमारे वो हैं, वो मेरे ख्याल से आपस में मिलके हम सब कर लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मगर वो इस वजह से हमारे साथ शामिल सिर्फ नहीं हो रहा है कि हम जी उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप अपने दिल से हमारे साथ आ रहे हैं बिकॉज दे फील कि उन्हें इस तारीखी मौके पे वहाँ होना चाहिए। साहब जो है वो उनकी जो है वो यहाँ से जब आ रहे हैं यहाँ, तो उसकी जो है यानी पोजीशन क्या है कि यानी वो सेहतमंद पूरी तरह से सेहतमंद है या वो इलाज वगैरह में लग जाएंगे तो पूरे आपकी इलेक्शन जो है वो सर के ऊपर है, तो कैसे वो उस मूवमेंट को चला सकते हैं? देखिए मियाँ साहब ने कभी मेरी जब वो एग्जाइल में थे आप यकीन मुलाकातें हुई हैं और तबीयत उनकी मतलब ही इज़ नॉट वेल, मगर वहाँ पे कोई डॉक्टर से मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनका कंटिन्यूस ये इलाज रहा। मगर इस वक्त मेरे ख्याल है क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि किसी वक्त भी इलेक्शंस जो हैं, चाहे हम फरवरी की बात कर रहे हैं या 1 महीने बाद की बात कर रहे हैं, मियाँ साहब जो हैं अगर यहाँ पे नहीं हुए तो ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो इस वक्त मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी सेहत को साइड पर रख के आ रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब ही जो हैं, जो लोग उनकी इज्जत करते हैं हमारी पार्टी में, आई थिंक ही इज़ द वन हु कैन मतलब लोगों के पास जाके फेस कर सकते हैं, उनको यकीन दिला सकते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लोग उनकी बातों का यकीन करेंगे और एक बार फिर नून को और उनको मौका देंगे। यासीन साहब, आप तीनों की नुमाइंदगी करते हैं, ये बताइए कि कितने वकला कराची से या सिंध से इस्तेमाल के लिए जा रहे हैं? क्योंकि 2013 में मियां साहब आए थे, जिक्र किया कि वाजपेयी और मियां साहब मिलकर मसला कश्मीर को हल करना चाहते हैं, तो आप चूंकि आपका ताल्लुक कश्मीर से है, तो आप समझते हैं कि ये वही पॉलिसी है जो आप लोग चाहते हैं, उसी तरह दिल आजाद होना था कश्मीर को? देखें किसी भी मसले का जो हल है वो जंग नहीं है, टेबल टॉक है। जंग का दौर चला गया। आप देख रहे हैं आजकल जो फ़लस्तीन में, बल्कि मैं उसकी भी मजम्मत कर रहा हूँ, इसराइल फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड हैं जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो इशू जो है, मैं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार का जब मैं प्रेसिडेंट था, मैं इंडिया गया तो मैंने रास्ते में हर जगह एड्रेस करते हुए मसला कश्मीर और पानी के मामले को टच किया। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप इशूज़ पे बात करें, हम खैर सगाली के दौरे पे आए, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो है वो मसला कश्मीर है, जब तक उसका मसले का कोई हल नहीं निकलता मामला आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो चीज़ आप कहते हैं कि जो मसला कश्मीर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट मसला कश्मीर है। जिस तरह मेरे एक नौजवान साथी ने अभी सवाल किया था कि नौजवानों के लिए क्या करते हैं, तो मैं अमूमन एक बात कहता हूँ कि जो पैसा अगर मसला कश्मीर का कोई हल निकल आता है तो जो पैसा हम अपने डिफेंस पे खर्च करते हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वो हम अपने अपने ममालिक में गुर्बत को दूर करने पे खर्च करें तो मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मियाँ साहब ने हमेशा कश्मीर के मामले में एक रोल प्ले किया है। बहैसियत वज़ीर आज़म के वाजपेयी वाले मामले को मैंने इसलिए कहा
کہ جب واجپئی کو لاہور بلایا گیا اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو سلامی دینے سے انکار کر دیا، ایک پولیٹیکل پارٹی نے جلسے جلوس کیے، پھر کارگل کا ایشو کھول دیا گیا تو واجپئی نے واپس فون کر کے کہا کہ آپ نے میری پیٹھ کے اندر شورا گھونپا ہے۔ تو وہ اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتا کہ کارگل ایشو کو سٹارٹ کرنے والے کون لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اگر دو لیڈروں کے درمیان بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس میں اگر رکاوٹیں کھڑی نہ کی جاتی اور اس مسئلے کا کوئی حل نکل آتا تو وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مفاد میں ہوتا۔ آج بھی میں کہتا ہوں کشمیر ایشو ایک برننگ ایشو ہے، کسی وقت بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہ ایشو مشکل صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ ہم تمام ایشوز پہ کھل کے بات کریں اور کوشش میرے نزدیک آج کل ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے، اس میں ہماری لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے جو بولڈلی جا کے ٹیبل ٹاک کرے اور کہیں کہ یہ ایشوز جو ہیں ان کا حل نکالا جائے۔ وکلا کا جہاں تک جانے کا تعلق ہے پورے پاکستان سے جا رہے ہیں جتنے بھی ہیں، ہماری وکلا برادری اپنے اپنے حساب سے جا رہے ہیں، کوئی دوست کراچی سے بھی جا رہے ہیں۔ تو میں تو پاکستان کے تمام وکلا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا ویلکم کریں، جائیں، اور یہ کہنا کہ کتنے جا رہے ہیں گنتی کرنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ یہ مینار پاکستان کا جلسہ آپ کو بتائے گا کہ وہاں کتنے لوگ موجود ہیں۔ میں نے بتا دیا نا، مینار پاکستان بتائے گا آپ کو۔